Assalamu alaikum, everyone, and welcome to Amal Stories Alumni Connect. I'm Adnan Tariq, and I'm again excited to be with you today as we come together to hear another inspiring story from our amazing alumni. Again, our guest today has an amazing journey that's both inspiring and uplifting. They faced challenges head on and have some incredible insights to share with us. Um, So what I love most about these sessions is the sense of community that we build, and each story connects us, teaches us something new, and also reminds us the power of our shared experiences. So without further ado, it's my pleasure to introduce today's guest, Rashid Mahmood. Rashid, thank you so much for being here. And to start, I'm just going to request you to introduce yourself to the audience. Uh, First of all, thank you so much, Adnan, for this opportunity to connect with Amal and all the family there. And I really appreciate you for that initiative to let us share our experiences and learning so that the listeners or the community could take the advantage from that. Uh, Coming to my background, I grew up in a small village, and from the early childhood, uh, I realized that the life follows a predictable pattern in this place. The cycle was pretty clear that the sons of poor remain poor, the children of laborers become laborers, and those born in the servitude follow the same path, right? So the cycle seemed to be unbreakable, and it was just like a chain that was stretching from one generation to another generation. But I wanted to shatter that chain, and I took my life as an opportunity to rewrite the story, not just for me, but for my family as well. And uh, that was the main driving force for me throughout this journey. Uh, and I worked tirelessly during my initial days when I was just studying in school, college. And with unwavering support of my parents and teachers, I produced wonders for the world. Uh, then my story took me to UT Lahore, where I graduated as a chemical engineer. But with a degree in hand from the UT Lahore, I remained jobless for around 1 year. But I kept on trying, and through proper planning, preparation, and dedication, I started getting opportunities. Initially, I worked in UT Lahore and then Lumps University in a capacity of a lab engineer. Currently, I'm working in Pakistan's leading fertilizer producer, that is Koji Fertilizer, in a capacity of lead operations engineer. Throughout this journey, I faced many setbacks and failures, but in those moments, I stayed connected to myself, to my goal, and especially my inner self that kept me saying that let's try once more. So summing up, today I stand here with a story of resilience, hard work, relentless effort that changed not only my life, but the life of the other people that are connected to me or that are around me. So that's the background that I carry with you and sharing with you and all alumni and the community. Thank you so much, Rashid, for sharing that. And I really loved the line that you used, that you wanted to use your life as an opportunity to bring that transformation that you wanted. That's that is really a powerful message, and we will just touch upon that. And really proud of the fact that you graduated as a chemical engineer, and then got connected with various academic institutions like UET and LUMS. And although there were a lot of setbacks and failures, but you are also giving the message that how we if we take responsibility of our actions, then that that is one thing that brings the difference. So, Rashid, first of all, we are going to talk about your current role. If I'm being just be a little bit specific here, then what is one thing that really excites you about in your current position, current role?
What are your major roles and responsibilities? Right. Uh, I'm working as a lead operations engineer in our process plant, one of the process plants, and my designation is Deputy Executive Operations. And here I'm responsible for the smooth, efficient, and safe operation of a complex process plant, जिसमें हमारे पास जो फर्टिलाइजर प्लांट है उसकी जो ऑपरेशन है उसके जो है ना उसको हम देखते हैं और आई लीड अ टीम ऑफ अराउंड 8 people ड्यूरिंग माय शिफ्ट and make sure that the plant is running safely, smoothly, and production is as per plan. That is the main responsibility that I carry. Other than that, there are many other tasks and jobs and responsibilities that we are looking for. जिसमें के because the professionals or the engineers know कि जो process plant है itself carries inherently जो है वो उसके अंदर complexities and hazards जो है ना वो होते हैं, especially जो fertilizer plants and they are actually a high hazard processes. तो उनका जो ऑपरेशन है उसको हम लुक आफ्टर करते हैं। उसके अलावा जो है जो रूटीन में जो डिफरेंट जॉब्स हो रहे होते हैं, क्रिटिकल जॉब्स हैं, उनको जो है उनकी मॉनिटरिंग, उनकी प्लानिंग और उनका जो रिस्क एनालिसिस है उसके अंदर हम डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद क्योंकि रनिंग प्लांट पे मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, तो उनकी जो है जो क्रिटिकल सेफ्टी एंड रिस्क असेसमेंट्स हैं वो जो है ना वो हम जो लोग जो है ना परफॉर्म करते हैं। फिर जो न्यू कमर्स हैं उनकी ट्रेनिंग है, जो न्यू ज्वाइनर्स हैं उनकी जो है ना वर्कशॉप्स हैं, ट्रेनिंग हैं, उनको कंडक्ट करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ द जॉब। और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है अभी तक अपने रोल में, देन इट्स अराउंड 6 years दैट आई एम वर्किंग इन दैट रोल। तो शुरू में तो ये है कि आप कुछ जो प्लांट ऑपरेशंस हैं उसके अंदर जो है ना मेजरली हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, बट एट लेटेस्ट स्टेज जब आप एक्सपीरियंस होते हैं तो आप जो है ना बाकी चीज़ें भी उसके अंदर देख रहे होते हैं। मुझे जो सबसे ज़्यादा पार्ट जो एक्साइट करता है वो रिस्क असेसमेंट्स हैं प्लांट के अंदर और ट्रबल शूटिंग है प्लांट के अंदर, जो कि डेली रूटीन में जो डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं या एक्टिविटीज हो रही हैं, जॉब्स हो रही हैं, उसके अंदर जो रिस्क हैजर्ड इन्वॉल्व हैं उनका एनालिसिस करना, प्लांट पे कोई इशू आ गया है, प्रॉब्लम आ गया है तो उसकी ट्रबल शूटिंग के अंदर इन्वॉल्व होना, वो जो है ना मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है अपने रोल में। Right. Thank you so much for sharing that. And, that's really amazing. Um, Acha, Rashid, I would like to now take a step backwards. Like initially, you were mentioning that the transformation journey has not been smooth, and there were a lot of setback and failures as well. So we would really like you to share your story with us. I know time short hoga, but if you could just give us a glimpse of what the transformation, what the journey looked like, then that would be great. सर एग्जैक्टली जर्नी वॉज नॉट स्मूथ एट ऑल, बट I believe if you work with the dedication, if you pursue your goal, then you can crack anything. So just earlier I mentioned that even after graduation from UT Lahore, I remained jobless. I couldn't find the relevant job. I actually wanted to get some practical experience and work in a process industry. That I couldn't crack any opportunity for around 1 year. तो उसमें इस दौरान जो है वो मैंने क्या किया कि जो कोई भी अपॉर्चुनिटी अवेल हुई मुझे, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिली तो वो मैंने अवेल की वहाँ पे। शुरू में जो है ना मैं जो यूटी लाहौर के अंदर एज ए लैब में जो है ना वो काम करने का मौका मिला, तो वो जो है ना मैंने अवेल किया। वो अपॉर्चुनिटी जो है ना मैंने अवेल की और उसको वहाँ पे लर्निंग की, चीज़ें जो है ना जो रोल था उसको जो है ना पर्पसफुली जो है ना वहाँ पे प्ले किया और उसका आगे भी ऑब्वियसली जो है ना एडवांटेज मिला मुझे। उसके बाद जो फिर मैंने लम्स यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। अ, जो एक मेन चीज़ थी इस पूरे जर्नी में कि कोई भी अपॉर्चुनिटी या इवन किसी भी रोल के अंदर जब मैं रहा, इवन ड्यूरिंग स्टडीज एंड ड्यूरिंग द जॉब, तो एक जो सिंपल सा सवाल जो है ना मैं खुद से पूछा करता था कि यार कैन आई डू बेटर देन दैट, कैन आई डू बेटर देन दैट। तो ये वो एक चीज़ थी कि जिसने मुझे
परसू किया था, जिसने मुझे मोटिवेट किया कि यस मैं जो है ना अपनी मेरे अंदर एक पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, इससे मजीद जो है ना बेहतर करने का। इस वजह से जब मैं मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली प्रोसेस इंडस्ट्री में, तो ऐसा नहीं था कि मैं जो है ना फिर उसको एक नेगेटिव ले लूँ कि यार ये तो नहीं हुआ तो अब क्या होगा। तो मैंने इसको जो है ना पॉजिटिव लिया कि अभी मेरे पास फिर अवेलेबल अपॉर्चुनिटी क्या है वो मैंने अवेल की। जिस तरह यूटी लाहौर के अंदर काम किया, तो फिर उसके अंदर मैंने मजीद जो है ना दैट सेम क्वेश्चन कि कैन आई डू बेटर देन दैट, तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि मैं इससे अच्छी अच्छी जगह में जा सकता हूँ। तो उसमें फिर लम्स यूनिवर्सिटी जो है मैंने ज्वाइन किया था लैब इंजीनियर, वहाँ पे भी काम किया। और उसके बाद फिर फौजी फर्टिलाइजर, बट इन बिटवीन भी यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि मैंने फौजी फर्टिलाइजर में 1 साल जो है ना मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ना वो मैंने ज्वाइन किया। 1 साल वहाँ यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की, बट आफ्टर दैट 1 ईयर कंफर्मेशन नहीं मिली मुझे। तो आई वॉज प्रिटी क्लियर कि अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे क्या करना है। मैं जैसे ही कंफर्म हुआ कि आई एम नॉट गेटिंग द परमानेंट ऑफर, तो आई वॉज थर्ड डे आई वॉज बैक इन लाहौर, और डिसाइडेड कि मैं यहाँ पे दोबारा जो है ना अपनी एफर्ट अपनी स्ट्रगल जो है ना वो शुरू करूंगा। मेन जो चीज़ थी इस जर्नी के दौरान, वो जो चीज़ मैंने फॉलो की कि आई रिमेन फ्लेक्सिबल इन एम्ब्रेसिंग अपॉर्चुनिटीज। अगर कोई एक अपॉर्चुनिटी जो कि मेरा ऑल्दो मेरा गोल था बट आई कुडंट फाइंड दैट, तो मैं उसके साथ टिक नहीं रहा। uh, कोई और अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है तो वो मैंने अवेल की है, और उसका अल्टीमेटली लेटेस्ट स्टेजेस पे जो है ना मुझे फायदा भी हुआ। Right. And I think in all that story, one things that stood out for me was that one question that you kept on asking yourself, can I do better than that? I think yes, this self-reflective exercise is super important. And my next question to you is also based on that. K Rashid, as you know that professional development is equally important along the academic qualifications and the skills that we acquire. So, what steps did you take for your professional development that helped you in your overall journey? सर, प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। मैं तो इसको ऐसे जो है ना कंसिडर करता हूँ। तो अगर मैं इसको अपनी जर्नी को देखूँ, तो ये जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो मैंने अपने जो है ना जो यूनिवर्सिटी डेज थे वहाँ से मैंने स्टार्ट की। यूनिवर्सिटी में जब मुझे रियलाइज़ हुआ, जो विद टाइम आप जब आपको एक्सपोजर मिलता है तो आपको रियलाइज़ होता है कि कहाँ जो है वो आपके अंदर स्किल गैप कहाँ पे है, आप में आपने जो टेक्निकल नॉलेज है उसके अंदर गैप कहाँ है। तो जो फर्स्ट जो चीज़ है वो इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि यस देयर इज अ गैप। क्योंकि जब तक आप ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना अपना ये गैप एनालिसिस किया कि मुझे टेक्निकली कहाँ पे जो है ना इम्प्रूव करना है, और जो बाकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उसमें कहाँ पे इम्प्रूव करना है। तो अगर मैं इसको लिंक करूँ विद ड्यूरिंग माय यूनिवर्सिटी डेज, तो मैंने उस दौरान क्या किया कि मैंने डिफरेंट जो है ना कोर्सेज किए, वर्कशॉप किए। आई रियलाइज के कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर, कॉन्फिडेंस के अंदर आई नीड इम्प्रूवमेंट। तो उसमें जो भी पेड इवन पेड कोर्सेज किए, वर्कशॉप किए हैं, वो अटेंड की ताकि मैं इस चीज़ को जो है ना इम्प्रूव कर सकूँ। ज्वाइनिंग अमल वाज दैट पार्ट ऑफ दैट जर्नी के, जहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि यस मुझे जो है ना सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना है, जिस वजह से मैंने जो है ना अमल ज्वाइन किया। उसका लेटेस्ट स्टेजेस पे मुझे जो है ना फायदा भी हुआ, और ये अभी भी हो रहा है। तो वहाँ पे जो है ना फिर जो एक सोसाइटी जो है ना वो मैंने ज्वाइन की। तो ये जो है ना यूनिवर्सिटी के अंदर था। अच्छा, फिर मेनली ये है कि ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी टाइम जो है ना मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था डिफरेंट एकेडमीज में। तो वहाँ पे जो है ना मेरी लर्निंग कॉन्फिडेंस था वो जो है ना मेरा इम्प्रूव हुआ। उसके बाद अगर मैं इवन आफ्टर ज्वाइनिंग एफएससी अगर मैं इसकी बात करूँ, तो इस 6 साल के दौरान जो है ना जो मेन जो चीज़ है वो ये है कि जो आपका जो कोर रोल है उसके साथ जो है ना आपने लिंक रहना है, उससे रिलेटेड जो टेक्निकल नॉलेज है उसको जो है ना आपने डे बाय डे इम्प्रूव करना है। वो आप कैसे इम्प्रूव करते हैं कि डिफरेंट जो है ना ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं, आई डू अटेंड देम। वर्कशॉप्स होती हैं, शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, वो अटेंड किए। फिर जो मेन पार्ट होता है वो आपका सर्टिफिकेशन का होता है कि आप जो है ना अपने रोल से रिलेटेड, जॉब फंक्शन से रिलेटेड यू डिफरेंट सर्टिफिकेशन। जस्ट फॉर एग्जांपल के लास्ट ईयर जो है वो आई डिड सर्टिफिकेशन, आई एम सर्टिफाइड पीएचए एज अ लीडर।
फ्रॉम एन इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज टफ। फिर उसके अलावा आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम ग्लोबल ओशा इन 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 हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ये चीज़ है। इवन करंटली जो है ना मैं जो है ना सर्टिफिकेशन जो है ना परस्यू कर रहा हूँ, उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ तो जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर फर्स्टली जो है ना आप अपना गैप एनालिसिस करना कि आप कहाँ कहाँ पे जो है ना आपको मजीद इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, बहुत इन टेक्निकल साइड एंड सॉफ्ट स्किल्स टू। तो उसमें उससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं कि आप बुक्स पढ़ सकते हैं उससे रिलेटेड। इवन मैं जो है वो स्किल जो है ना रीडिंग बुक्स जो कि मेरे टेक्निकल जो मेरा डोमेन है उससे रिलेटेड है। फिर जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, इवन पेड कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, वो आप परस्यू कर सकते हैं। और अगर सॉफ्ट स्किल साइड पे देखें तो किसी भी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको और किसी भी फोरम पे अपेयर होने की, जिस तरह की कोई कॉन्फ्रेंसेज आ जाती हैं उनके अंदर जो है ना पार्टिसिपेट करना, या कोई आर्टिकल जो है ना पब्लिश करना, इवन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और एट द लिंक्डइन। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर जो है ना एक इम्पोर्टेंट रोल जो है ना प्ले करती हैं। और मैंने भी इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो किया, और इवन अभी मैं इन्हीं चीज़ों को जो है ना फॉलो कर रहा Right. I think these are really very important के gaps analysis एक तो बहुत ज़रूरी है, उसके बाद identify करना and then keeping on advancing in our technical skills, staying up to date, that is super important. So Rashid, as we move towards the end of our conversation, a lot of people who are watching you are, people, students who are about to graduate, right? There are people who are, fresh grads and looking for jobs. So what is one advice, that you would, what is something that you would say to the people out there who are actively hunting the job market? हूँ। जो भी जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो कि भी जस्ट ग्रेजुएट होने वाले हैं, जिनने अपनी जस्ट अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, उनके लिए एडवाइस जो है ना वो मैं 3-4 पॉइंट्स के अंदर जो है ना समराइज करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। द फर्स्ट थिंग इज के फाइंड योर वाई। आप कोई जो है ना अपनी रीजन जो है ना आपको पता होनी चाहिए कि मुझे कोई भी काम या किसी भी स्टेज पे मैंने पहुंचना है तो क्यों पहुंचना है। वो जो वाई फैक्टर है वो एक्चुअली वो एक ड्राइविंग फोर्स है, वो एक ऐसा फ्यूल काम करता है, वो ऐसा गाइडलाइन काम करता है। वो आपको एक मैप प्रोवाइड करके देता है कि आपने कोई भी चीज क्यों करनी है। जब तक आपको अपना वाई नहीं पता, रीजन नहीं पता, तो आपके अंदर वो मोटिवेशन, वो डिसिप्लिन, वो चीजें फाइंड आउट करना जो है ना मुश्किल है। और ये जो वाई फैक्टर जो है ना इसको फाइंड आउट करने के लिए जो मैं सजेशन जो है ना वो देता हूँ, या मैं खुद जो है ना इवन फॉलो करता हूँ, वो ये है कि आप अपने पेन को आइडेंटिफाई करें। आप अपने लाइफ के अंदर, अपनी जर्नी के अंदर जितना भाई आपने अपनी लाइफ गुजारी है उसमें अपने पेन को आइडेंटिफाई करें, पेन आइडेंटिफाई करें। उससे जो है ना आपको वो पेन जो है ना आपके लिए एक लाइक अ वाई फैक्टर जो है ना एक रोल प्ले कर सकते हैं। बिकॉज मैं ये बिलीव करता हूँ कि जितना आपको लाइफ के अंदर पेन चेंज करता है, जितना वो आपके आपकी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन, गोल और डिसिप्लिन ये चीजें लेके आता है, वो मे बी दैट डिपेंड्स केस टू केस, बट आई थिंक ये एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर हो सकता है। तो सबसे पहले अपना जो वाई फैक्टर है, जो रीजन है, वो आप जो है ना फाइंड आउट करें। वो एक कहते भी हैं कि व्हेन योर वाई इज स्ट्रॉन्गर देन योर हाउ बिकम्स ईजियर। जब आप अपना वाई फाइंड आउट कर लेंगे तो देन जो हाउ वाला जो पॉइंट है वो आपके लिए इजी हो जाएगा। आफ्टर फाइंडिंग योर वाई, राइट राइट योर गोल। और अपने उस गोल पे जो है ना वो आप फोकस्ड एफर्ट जो है ना आप अप्लाई करें। और यहाँ पे जो एक पॉइंट मैंने बताया है कि अपने गोल्स को लिखना जो है ना इज इम्पोर्टेंट। एटलीस्ट मैं जो है ना लिखता हूँ और मुझे इसका बहुत फायदा भी होता है। और शायद उसका कोई साइकोलॉजिकल उसका इफेक्ट है, इम्पैक्ट है कि आप कहीं पे भी लिखते हैं तो जैसे आप, अगर आपने मेंटली भी एक मैप बना लिया है, गोल सेट कर लिया, बट स्टिल लिख लेना जो है ना वो आपको फायदा जरूर देता है। आपने कहीं पे लिख लिया तो वो एक और सोर्स है जो कि जब भी आप उसको आप देखेंगे तो वो आपको एक एक्साइटमेंट दिलाएगा, एक याद दिलाएगा कि यस ये चीज मैंने करनी। उसके बाद जब आप जॉब हंटिंग कर रहे हैं तो लाजमी नहीं है कि यू फाइंड द रोल दैट इज एज पर एक्सपेक्टेशन। तो जब इस तरह की सिनेरियो आ जाता है तो फिर उस दौरान आपने फ्लेक्सिबल रहना। आप फ्लेक्सिबल रहें, आपको कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो आप ढूंढें।
इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ कि जब मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी तो मैंने कुछ जो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी वो अकेडेमिया में मिल रही थी, यूनिवर्सिटीज में मिल रही थी या टीचिंग रेफरेंस से मिल रही थी, तो मैंने इस रोल को भी आगे एक्सटेंड किया। उसमें मैंने इवन इल्म की दुनिया .com के साथ जो है ना वो मैंने पार्टनरशिप की वहाँ पे, क्योंकि पढ़ा के जाने का एक्सपीरियंस हो चुका था। तो जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं जो है वहाँ पे अपने वीडियो लेक्चर्स जो है ना रिकॉर्ड कराऊँ किसी भी सब्जेक्ट पे या स्टूडेंट की जो ग्रूमिंग या उनकी गाइडेंस के रेफरेंस है, तो वो मैंने जो है ना रील किया। और उसका वो सॉर्ट ऑफ आपको कॉन्फिडेंस भी देता है और आपको ये भी चीज़ रियलाइज होती है कि ये एक और एक एडिशनल चीज़ है जो कि मैं कर सकता हूँ। तो बी फ्लेक्सिबल, और एक रोड मैप जो है ना वो आप डेवलप करें। थर्डली ये है कि आप गाइडेंस लें फ्रॉम सीनियर्स और फ्रॉम द पीपल विद द रोल के जो कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी तो मेरे कुछ जो सीनियर्स थे उनके साथ मैं कनेक्टेड रहता था। उनसे अपनी सीवी शेयर की कि यार आप मुझे बताएं कि यहाँ पे जो है ना इस सीवी के अंदर मैं किस तरह इम्प्रूव कर सकता हूँ ताकि मैं अपने रोल को जो है ना ताकि मैं इंटरव्यूज जो है ना उनको क्रैक और एप्लीकेशन में जो है ना मैं उसमें सक्सेसफुल हूँ। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको जो है ना वो फॉलो करके जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो कोई अपॉर्चुनिटी जो है ना वो अवेल कर सकते हैं। और अगर नहीं कर रहे तो फ्लेक्सिबल रहें, और पेशेंस जो है ना वो आई थिंक आपको आपके अंदर होना चाहिए अगर आप कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं जो है ना अवेल कर रहे। That's amazing, Rashid, and thank you so much for sharing and elaborating on all of these points. For our audience, I can just quickly review that Rashid focuses on, finding your why, writing down the goals, flexibility in job hunting, and finally seeking the guidance from your mentors. I think that these are really important points, or if anyone who follows them would definitely be achieving what they strive for. So that brings us to the end of our session. And Rashid, I would like to thank you so much again for joining us today and sharing your incredible journey with us today. Thank you so much, Adnan. It's really a pride moment that you let us शेयर आर एक्सपीरियंसेस के हमारे अगर एक्सपीरियंसेस या लर्निंग हैं उनसे जो है ना कोई फायदा उठा सकता है। एंड आई थिंक कि वो शेयरिंग वाली बात है कि आप शेयर करते हैं तो लोग जो है ना अपने एक्सपीरियंसेस के अलावा जो दूसरों के एक्सपीरियंसेस हैं उससे सीख के अपने लाइफ के अंदर अपने गोल्स के Hmm. अंदर कोई अगर चेंज लाएं और अपने उन गोल्स को और उन पर्पस को अगर वो आप अचीव कर लेते हैं तो आई थिंक दैट दैट्स द अचीवमेंट फॉर अस टू। Absolutely, Rashid. Totally agree with you on that. And I think that's the whole objective of having these alumni talks, that people like you come and share their experiences and, become a source of learning for our community. And I would like to share that your story is a powerful reminder of the strength that comes from perseverance and staying true to your goals. And it's in moments like these that we really see the value of community, learning from each other, supporting each other, and growing together. So, as we close, I'd like to leave you with this thought that no matter where you are in your journey, remember that every challenge is an opportunity in disguise. And keep moving forward, trust in your path, and know that you have a community here that believes in you. So, to our audience, like, I look forward to seeing you at our next session where we'll continue to share and celebrate remarkable stories of our Amal alumni. And until then, take care, stay connected, and keep striving for your dreams. Thank you all, and have a wonderful evening.